Welcome class 11. Our today's topic is types of directors. Before that, we will little discuss about the qualification of a director. Students, the Companies Act has not prescribed any academic or professional qualification for the directors. मीन्स डायरेक्टर के लिए कंपनी एक्ट के थ्रू कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसको वैलिड होने के बाद ही वो कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं. इट डज नॉट इम्पोज एनी शेयर क्वालिफिकेशन ऑल्सो फॉर बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ company. Okay, next, today's our topic is the types of director. You can see on your screen they has given the total 10 types of directors. Okay, now there has the first director. Very first, okay, what is the first director? Students, the first director means the managing director of the company who work as a full-time director or full-time employee of the company. It take care the overall charge of running of the company. ये क्या करता है? कंपनी का पूरा जो होल टाइम मतलब डायरेक्टर है ये, तो जो कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो भी डे टू डे रनिंग है, उस पर पूरा इसका चार्ज रहता है. मीन्स इट टेक केयर द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. सो वी कैन से इट टेक केयर द ओवरऑल चार्ज ऑफ द रनिंग कंपनी. It is responsible for the everything. It is responsible for the managing day to day activities and whatever the affairs are going in the company. So these kinds of director are responsible for the every activity which is going on in the organization. It is appointed for a period of 5 years. कितने दिनों के लिए? ये 5 years के लिए अपॉइंट होते हैं. Okay, so they are appointed by the promoters of the company at the time of the incorporation of the company. Means जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसी टाइम पे ये अपॉइंट किए जाते हैं by the promoters of the company and remain in office till the first AGM of the company is held. और ये ऑफिस में कब से, कंपनी में कब से रहते हैं? जब कंपनी का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है तब से ये कंपनी में रहते हैं और कंपनी की जो भी एक्टिविटी है उसको हैंडल करते हैं. Now, next types of director is the rotational director. Okay, these kinds of directors are retired by the rotational. It indicates those directors who are liable for retirement by turn or rotation. They are eligible for the reappointment. Means they retired by the turn. टर्न और रोटेशन के थ्रू ये क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. Okay, now you can see there has the some information also given. Retirement by rotation, directors of a public company and private company which is subsidiary of the public company have to retire by rotation in every annual general meeting. They retired by the rotation in every AGM. It is decided on the basis of time spent by a director on the board. मतलब कौन से डायरेक्टर्स ने कितना समय बोर्ड के साथ स्पेंड किया उस पर डिपेंड करता है इनका रोटेशन ऑफ रिटायरमेंट. ओके, और अंडर सेक्शन 152 क्लॉज 6 2/3 ऑफ द बोर्ड इज सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन. उसमें से 2/3 क्या रहेंगे? दे आर डॉक्टर फॉर द रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड 1/3 ऑफ अबो मीन्स 1/3 ऑफ द 2/3 जो भी 2/3 डॉक्टर्स है उसमें से 1/3 दे विल रिटायर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. 1/3 क्या हो जाएंगे? हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर्ड हो जाएंगे. टेक एग्जाम्पल, अ कंपनी विल 3 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड. अगर कंपनी के पास 3 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, सो 2 डायरेक्टर्स क्या हो गए? मीन्स 2/3 डायरेक्टर्स. 2/3 मीन्स 2 डायरेक्टर्स. दे मस्ट बी रोटेशनल डायरेक्टर. ओके, दे मस्ट बी रिटायर्ड बाय द रोटेशन. जैसा कि हमने देखा अंडर सेक्शन 152 में 6 क्लॉज में लिखा है कि 2/3 अगर 3 हैं तो उसमें से 2/3 क्या होंगे? दे रिटायर्ड बाय द रोटेशन. 2/3 रिटायर्ड बाय द रोटेशन. ओके, and 1/3 of the 2/3. 2/3 का 1/3 मीन्स 1 डायरेक्टर. दे विल रिटायर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. वो क्या होंगे? हर एनुअल जनरल मीटिंग में वो रिटायर होंगे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एडिशनल डायरेक्टर. ओके, powers and rights of the additional directors are on par with other directors. Powers means what? जो अथॉरिटी मिली है, जो राइट्स मिले हैं. ओके, सो एडिशनल डायरेक्टर्स के पास सारे पावर्स होते हैं.
Okay, so these kinds of directors can appoint by the board of directors. The board of directors shall appoint any person as an additional director anytime. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, किसी भी टाइम पे क्या करता है, कोई भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बिकॉज द पावर शुड बी गिवन बाय एओए टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन देता है, एओ देती है. एओ मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मीन्स अगर कोई पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एन एनुअल जनरल मीटिंग, कोई भी पर्सन एनुअल जनरल मीटिंग में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने में फेल हो गया, सो द पर्सन कैन नॉट बिकम द एडिशनल डायरेक्टर. वो पर्सन एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू एओए. एओ ने क्या बोला है, एकदम क्लियर कर दिया है. इफ एनी पर्सन who fails to get appointed as director in an annual general meeting, so he cannot become additional director. Okay, and this kinds of director, ये जो additional director होते हैं, this kinds of director help the organization when business require more than manpower. अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है टू इम्प्रूव हिज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, सो दिस काइंड्स ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस. ओके, सो पावर एंड द राइट्स ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर आर ऑन पार विद द अदर डायरेक्टर. इसके भी पावर और राइट क्या होंगे, ये एओ देती है बाय द टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन इनके जो पावर्स और राइट रहेंगे ये अदर डायरेक्टर के जैसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे. एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स एज एंड व्हेन नीडेड. एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन उसको भी अथॉरिटी कौन देगा, ए देता है, मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड, बट एओ किसको पावर देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देती है. एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द नेक्स्ट एजीएम. एडिशनल डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. फोर्थ, अल्टरनेट डायरेक्टर. ओके, इट मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय बोर्ड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर इन हिज एब्सेंस. दिस अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फॉर लेस देन 3 months. ये ऐसे डायरेक्टर होते हैं अगर जो कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है, मीन्स इफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज अवे फ्रॉम इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 months. जो भी कंपनी का ओरिजिनल डायरेक्टर है, अगर वो इंडिया से कम 3 महीनों के लिए बाहर गया हुआ है, 3 या उससे ज़्यादा महीनों के लिए बाहर गया है, तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे कंपनी अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी. सो it is nominated by board to act in place of a director in his absence. Means it act as on the place of the original director. Okay, BOD shall appoint a person as an alternate director in place of original director, which is authorized by the AOA by the authority of the articles of association. Board of director shall appoint a person as an alternate director at the place of the original director when the original director is away from the India for at least 3 months. जो इंडिया से कम 3 महीनों के लिए, कम से कम 3 महीनों के लिए या फिर उससे ज़्यादा के लिए क्या है, बाहर गया हो, तो उसके प्लेस पे ये अल्टरनेट डायरेक्टर एज द ओरिजिनल डायरेक्टर वर्क परफॉर्म करेगा. ओके, but such director can be an alternate director only for the one director in a company. Suppose कंपनी में 3 ओरिजिनल डायरेक्टर है, उसमें से 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ एक डायरेक्टर के लिए वर्क परफॉर्म करता है. अगर दूसरा डायरेक्टर भी एब्सेंट है तो उसके लिए दूसरा अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. सो दैट हैज़ ओनली हियर कि ऐसे डायरेक्टर्स जो वो होते हैं, दे कैन बी एन अल्टरनेट डायरेक्टर ओनली फॉर वन डायरेक्टर इन अ कंपनी. सिर्फ एक डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट रहेंगे. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज द वुमेन डायरेक्टर. द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड. ओके, जो भी नीचे क्लासेस दिखा रहे कंपनी के, इन कंपनीज में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. अब कौन सी कंपनी से देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है,
देयर शुड बी एटलीस्ट वन वुमेन डॉक्टर, एक वुमेन डॉक्टर होनी ही चाहिए। दे रिक्वायर टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डॉक्टर। और एवरी पब्लिक कंपनी, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो भी, अगर वो पब्लिक कंपनी है जिसका जो पेड अप कैपिटल है अगर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का है, दे शुड बी अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डॉक्टर। और द एवरी पब्लिक कंपनी विच टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ इज़ मोर देन 300 करोड़ और 300 करोड़, जिसका वो सारी पब्लिक कंपनी जिसका टर्न ओवर 300 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा का है, सो दिस काइंड्स ऑफ कंपनी हैव टू रिक्वायर टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डॉक्टर। ओके, every listed company have to require to appoint at least one doctor. Every public company whose paid up share capital is more is 100 crore or more than 100 crore, they should require to appoint at least one doctor. Or whose turnover of rupees 300 crore or more than 300 crore rupees, he also that company also to appoint require at least one woman doctor. Okay, next 6, nominee director. The person is nominated on the board by the major or dominant shareholder like a financial institution to represent and safeguard his interest. Okay, अभी nominee director क्या है? You can see the name also represent the kinds of director. Nominee directors, it is a person which is nominated by the board. जिसको कौन नॉमिनेट करता है? बोर्ड नॉमिनेट करता है। by a major dominant shareholder like the financial institution to represent and safeguard its interest. Board of Directors may appoint such nominee director by authorization of AOA with the authority of the AOA. अगर AO अथॉरिटी देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट द नॉमिनी डायरेक्टर. ही इज अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एज टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट. उनके जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी अगर किसी बैंक ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन दिया, कंपनी के ऊपर लोन है उसका, तो वो इंस्टीट्यूशन और बैंक कंपनी को इंसिस्ट करेगी कि आप एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करें कि कंपनी उस पैसे का क्या कर रही है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दैट मनी, वो हमें पता चलता रहे. सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर कैन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड by authorization of AOA. Okay. Now 7th, executive director. This category can also be called whole-time director. They are in full-time employment with the company. Okay. They are the full-time employment with the company. They are the full-time director or employee of the company. They play a big role in day-to-day management of the company. For all practical purposes, they are given managerial responsibilities and suitable title like the marketing director, finance director, etc. They are the full-time director. They work as a whole-time director. They are the full-time employee or director of the company. एक कंपनी के लिए फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं. कंपनी का जो डे टू डे मैनेजमेंट है, एवरीथिंग ये क्या करते हैं, कवर करते हैं. दे गिव्स द फुल टाइम टू ओनली वन कंपनी. एक कंपनी को क्या करते हैं, फुल टाइम देते हैं. एंड दे फॉर्मुलेट कंपनीज पॉलिसीज. दे प्रिपेयर द ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कंपनी को होती है, पॉलिसीज, प्लानिंग, एवरीथिंग दे फॉर्मुलेट. जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट्स है, पॉलिसीज है, दिस ऑल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल द मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक तरह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है. टेक्निकल डायरेक्टर भी क्या होता है, एक तरह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होता है. मार्केटिंग डायरेक्टर आल्सो द वन काइंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फाइनेंस डायरेक्टर इज आल्सो द executive director. Means they look at the day-to-day management of the company. They look at the daily activities or affairs of the company. Okay, they work as a full-time employee of the company. Non-executive director, they just opposite of the executive director. This category is not involved in the day-to-day management of the company. एक कंपनी की day-to-day management इन्वॉल्व नहीं रहेंगे. They work as a part-time director. They don't spend or they don't depend on one company for their livelihood. ये अपनी livelihood के लिए किसी एक कंपनी में डिपेंड नहीं रहते हैं. So they work as a part-time director. Okay, and
दे हैव सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स, इनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती है. सो दे नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द वन कंपनी. ये दे ओनली फोकस ऑन द बोर्ड मैटर्स एंड एडवाइजेस दी बोर्ड. ये सिर्फ कंपनी के जो बोर्ड मैटर्स होते हैं ना उस पर फोकस करते हैं और कंपनी को एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, जस्ट ओनली. Okay, this category is not involved in the day-to-day management of the company and therefore hold no executive managerial position. ये कोई managerial position execute नहीं करते because they unable to look at the daily affairs of the company. In fact, non-executive director is labeled as the outside director. इनको outside director ही बोला जाता है because the idea behind this appointment is to get independent ideas, perspectives, second opinions and alternate voice to be to the board. Okay. So they just advise to the board on the special matters. They only focus on the board matters. Okay. Now, 9 types of director is the independent director. Okay. Independent directors means they act as a non-employee of the company. They act as a non-employee of the company. They are not related in any way to the company affairs directly or indirectly before getting selected. ये किसी भी तरह से कंपनी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कंपनी के इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो अफेयर्स होते हैं उसमें किसी भी तरह से उससे रिलेट नहीं करते जब तक ये सिलेक्ट नहीं होते हैं. ओके. एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, दे शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मीन्स जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. सपोज इफ कंपनी हैविंग द 15 मैक्सिमम डायरेक्टर, कंपनी के पास अगर 15 डायरेक्टर्स हैं, सो 1/3 ऑफ द 15 डायरेक्टर मीन्स 5 डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इफ फॉर एग्जाम्पल कंपनी हैविंग 15 डायरेक्टर, so 1/3 of the 15 means 5 directors should be the independent directors. Okay, let's see what is written under section 149. Any director other than a managing director, whole-time director or nominee director is independent directors. Means other than the managing director, whole-time director or nominee director. इनके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स होंगे दे आर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149 ऑफ द independent director hold office for a term up to 5 consecutive years and eligible for the reappointment. Okay. Independent directors cannot hold office for more than 2 consecutive terms. Independent directors cannot hold office for more than 2 consecutive terms. ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये 2 साल तक, कोई भी 2 साल तक, ये 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, मोर देन 2 मतलब मोर देन 2 ईयर से ज़्यादा ये ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते कंटिन्यूअली. ओके. नाउ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू possess appropriate skills, experience and knowledge in the fields of the law, management, sales, market, administration, corporate governance and technical process operations concerning company's business. ये सारे इनके पास नॉलेज एंड टेक्निक होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन फील्ड्स ऑफ द लॉ, मैनेजमेंट, टेक्निकल, सेल्स, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. Okay, number of independent director. You can see there has one chart has given for the listed company, 1/3 of its total number of directors will be the independent directors. Public company है, so at least 2 director will be the independent director. Okay, public company whose paid up capital is rupees 10 crore or more, so they will be the 2 directors. Public company with turnover of rupees 100 crore or more, there should be the 2 directors as an independent director. Public company with aggregate outstanding loans, debenture, deposit exceeding rupees 50 crore, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, डेबेंचर, डिपॉजिट ये 50 करोड़ मिला के पूरा 50 करोड़ है, वो कंपनी भी के पास भी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे. ओके. नाउ टाइप्स नंबर 10, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ डायरेक्टर्स. ये सबसे छोटा डायरेक्टर्स है. देखो,
Under Section 151, the Act has provided to elect one director by small shareholder of listed company. This is not a mandatory appointment. Okay, first let's see what is a small shareholder. Small shareholder is a person holding share of nominal value of maximum rupees 20,000. Means small shareholder means a shareholder which is holding share इक्वल टू और लेस देन ₹20,000 फेस वैल्यू। मतलब वो शेयर होल्डर जो इतने शेयर्स होल्ड करते हैं, या तो सिर्फ 20,000 की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड करते हैं, या फिर 20,000 से कम के शेयर्स की फेस वैल्यू होल्ड करते हैं। मतलब ₹20,000 की इक्वल या फिर उससे कम के शेयर्स होल्ड करते हैं। उन शेयर होल्डर को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर। मीन्स a shareholder which holding the shares of rupees 20,000 or less than 20,000, it is known as the small shareholder. So any listed company may have one such director elected by small shareholder. हर कंपनी के पास कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर के थ्रू इलेक्ट किया होना चाहिए। कंपनी में अपॉइंट वन सच डायरेक्टर ऑन इट्स ओन, या तो कंपनी अपने खुद से ऐसा एक डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, या फिर कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करे या फिर कोई रिक्वेस्ट रिसीव करे बाय 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर। 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर से उनको रिक्वेस्ट मिला हो या फिर एप्लीकेशन मिला हो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, या फिर जितने भी टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उसका जो 1/3 है, उसका जो 1/10 है, 1/10 उसका 1/10 एप्लीकेशन अगर आया है तो वो क्या, उसके बेसिस पे क्या कर सकती है बोर्ड? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला, कंपनी कैन अपॉइंट ऑन देयर ओन सच काइंड्स ऑफ डायरेक्टर, मीन्स कंपनी खुद से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, या फिर कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है by the 1,000 small shareholder or 1/3 of the total small shareholder whichever is lower। या तो 1/10 या तो कंपनी 1/10 टोटल स्मॉल शेयर होल्डर जो है उससे उसको एप्लीकेशन मिले, या फिर कंपनी 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर के थ्रू एप्लीकेशन या फिर रिक्वेस्ट रिसीव करती है, ओके, स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करने के लिए, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। और दूसरे केस में क्या होता है कि कंपनी खुद से भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ओके, आर यू गेटिंग? कंसेप्ट को समझो कि पहले हमें क्या समझना है कि स्मॉल शेयर होल्डर होते क्या। स्मॉल शेयर होल्डर विच होल्डिंग अ शेयर्स ऑफ ₹20,000 फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू 20,000 हो या फिर उससे कम की हो, ऐसे शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। बट अभी ये स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट कैसे होंगे? अगर कंपनी खुद से अपॉइंट करती है शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, तो ठीक है। बट अगर कंपनी आर रिसीविंग एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट बाय द 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लो, या तो 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करे, या फिर 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट देते हैं, इसमें से जो भी लो रहेगा, जो भी लो रेट रहेगी, उसके थ्रू क्या हो जाएगा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके, नाउ गाइस, अभी हमने देख लिया टोटल 10 नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आई थिंक सो वन वी हैड स्किप्ड, रेसिडेंट डायरेक्टर इज नॉट देयर, एडिशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, independent director. Okay, no, we had covered all everything. 1 2 3 4 5 6, we had covered first director, rotational director, additional director, alternate directors, women directors, nominee director, executive director, non-executive director, independent director, small shareholder director. Yes, we covered all the kinds of directors. So guys, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। गुड बाय।